I would request, except our guest speaker, rest of the participant kindly put your microphone on mute mode so that we can listen to our guest speakers in a proper way. And all the participants will be given chance to ask questions and concern queries at the end of the session. Okay. Good evening, all of you. I welcome all of you on behalf of organization. Really, today I'm so glad to see new faces as well as our guest speaker. She's with us, and also today I see Director of Orissa Follow-up, Bishop Dibrihoda, is also with us. So may I request him to brief about our organization. Then after that, I would introduce our today's guest speaker. Then we will start our session. May I request Bishop Dibrihoda to brief about our organization. Good evening, everyone, and I thank you and greet you from Balasore. And it is so exciting to see Mr. Amod Naik is organizing this Zoom meeting, and all of you have been invited to participate in the meeting. And also, on behalf of organization Orissa Follow-up, I would like to thank Dr. Anita Benjamin for coming and taking part and giving this such an important subject, which is the need of the hour. And thank you for the participants. And Orissa Follow-up, in a brief, it is a small faith-based organization located in Balasore district in Orissa, started in 1986, and basically working among the most neglected, marginalized communities in Orissa, and in the sector of social, economical, spiritual, and educational aspect. And our people, those who are working and serving the community, they are all scattered in 21 districts in Orissa. And we are so happy to involve in serving the people. And our goal is to bring the transformation in the communities, which is basically, we all know that they are all marginalized and community, and our work goes through community health education program. And we have so many programs, and basically helping the communities in various levels. Thank you so much. Over to you. Okay, thanks a lot. Director Orissa Follow-up, for briefing about Orissa Follow-up organization. So let me introduce our today's guest speaker. Her name is Dr. Anita Benjamin. She is a versatile lady, I say, at national level and international level. Let me brief about. I welcome you, madam. So let me share brief. Let me share with you all a brief profile about her. Right now, her current position is she is the founder president of Rashtriya Sai Mahasangh, and this organization is functioning in 22 states in India, and she is a global peace ambassador and also Delhi NCR representative of International Christian Embassy of Jerusalem, and member of National YWCA, Delhi State YWCA, and executive committee member, police administrative and judicial reforms, and member of MICA Network Switzerland International Organization, and member of Build USA International Organization, and also member of Engage Disability India, and national spokesperson of Christian community. Really, we feel so proud to have you, madam, with us today. And previously, previous position, sir also
are there, and let me brief about her accolades. She is Global Peace Ambassador by Academy of Universal Global Peace USA 2018 and Goodwill Ambassador by Human Equity Value Institute USA in 2019, International Women Empowerment Award and Peace Award and Community Leader Award. And also she has been awarded by National Women Leadership Award by Agra Short Film Festival 2018, and many more, which I'm so excited to share with you. Many more reputed positions, reputed awards she has been received by international organizations as well as national organizations. So I'd like to welcome our today's guest speaker, Dr. Anita Benjamin, because thanks for accepting our invitation. Even though she was preoccupied, even though a lot of tension she had, but still she has accepted our invitation, and she only thought of sharing this pertinent issue regarding suicide awareness. So we came to conclusion and decided to finalize a webinar on this topic. So now I hand over this session to Dr. Anita Benjamin to take forward. Thanks a lot, madam. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. I'll start now. Yes. मैंने अपनी चिता सजाई, मैंने अपनी चिता सजाई और उस पर मैं सो गया। ये शब्द समीर के, एक टीवी एक्टर के, जो 2 दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कह गया और उसने सुसाइड कर लिया। आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में, और मुझको बहुत खुशी है मुझे जैसा कि पता चला कि बहुत सारे लोग, हमारे ऑनरेबल बिशप और बहुत ही डिग्नेटरीज भी यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत सारे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, और उड़ीसा के सभी मेरे साथी भी यहाँ हैं। तो सबका स्वागत है इस सेशन में, और special thanks to Amod Nayak, who has invited me, who had faith in me that I would speak for the people of his organization, rather prestigious organization. So now you all know I am Dr. Anita Benjamin. एक बहुत ही दुख की बात है जो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि 4 दिन पहले मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ हुई। मेरी real sister-in-law, my brother's wife, she expired because she had cancer and she was fighting with cancer since last 1.5 year. उसके वजह से कुछ टेंशन था, मेंटली हम बहुत प्रिपेयर्ड नहीं थे, but then I thought of Odisha and Amod Nayak, who is so special to me. मुझे लगा उनकी इतनी तैयारी है, for the last 1 month we are connecting with each other and planning for this program, तो मुझको लगा नहीं, I should make myself strong and be there present at right 6 p.m. तो हम बात कर रहे हैं आज सुसाइड की। We are talking about suicide. आत्महत्या, आत्महत्या means अपने आप को मार लेना या खत्म कर लेना। ऐसा नहीं है कि ये अभी नया कोई सिस्टम चल गया है, नई कोई चीज दुनिया में आ गई है, ये हमेशा से था इस समय में। जैसे कि हम केवल इतना आप लोगों को बता सकते हैं कि हमारी बाइबल में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने ईसा मसीह को पकड़वाया था, जूडा नाम था उसका, उसने भी आत्महत्या कर ली थी, उसने भी अपने आप को खत्म कर लिया था, क्योंकि उसको बहुत बुरा लगा था, उसको बहुत खराब लगा था कि उसने ऐसे पवित्र व्यक्ति को पकड़वा दिया। तो ऐसा नहीं है, ये बात तो 4000 साल पुरानी है, और अवश्य हर धर्म में होगा, किसी ना किसी व्यक्ति ने कुछ कारणों से कभी ना कभी आत्महत्या की होगी। लेकिन अब ये एक फैशन बन गया है, इट हैज बिकम अ ट्रेंड
अब तो ये जैसे खेल में हो रहा है। और अगर हम इसका डेटा देखें तो एक साल में 2,03,314 12 साल से 29 साल के बच्चे सुसाइड करते हैं। 2,30,314 और 5 साल में अगर हम देखें तो 800 lakh 800 lakh people commit suicide। तो इस तरह से ये एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है, हम अपने आप को खत्म कर लें, हम अपने आप को मार दें तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो आज हम पहले उसके कारणों को देखेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस की कमी क्यों होती जा रही है। बिकॉज एवरीथिंग हैज अ रीजन, एवरीथिंग हैज अ कॉज। इससे पहले कि हम कॉजेस को डिस्कस करें, हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये कहना चाहते हैं, कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस मेंटल स्टेट में हम नहीं थे कि हम बहुत अधिक तैयारी करके बहुत अच्छा केटर करते आप लोगों के लिए। लेकिन जो कुछ भी प्रिपेयर हुआ है, हमें उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा। तो कॉजेज में पहले हम देखते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन्स ये बचपन से लोगों के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति, एक एटीट्यूड होता है जो उनको प्रेस करता है, फोर्स करता है कि वो अपने आप को खत्म कर लें, क्योंकि वो परेशानियों से लड़ना नहीं सीख पाते हैं, परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं, परेशानियों को जान नहीं पाते हैं, और उनको लगता है कि बेस्ट तरीका ये है कि हम अपने आप को खत्म कर ले। वो ये नहीं समझते हैं कि अपने पीछे वो जिन लोगों को छोड़ के इस दुनिया से गए हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनका इस दुनिया में क्या होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें माँ बाप अकेले रह गए होंगे, जिसमें भाई बहन छोटे बच्चे अकेले रह गए होंगे, लेकिन उस वक्त उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये इनबिल्ट प्रॉब्लम है, ये बचपन से अंदर होती है, और इसके वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और मजबूती के साथ खड़े नहीं रह पाते हैं, लड़ाई नहीं कर पाते हैं, और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। फाइट इन द फैमिली, आजकल आप देखिए लोगों के अंदर पेशेंस की कमी के कारण पारिवारिक झगड़े बहुत हो रहे हैं। माता पिता में झगड़े होते हैं, भाई बहनों में झगड़े होते हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टी को लेके झगड़े होते हैं, बहुत तरह तरह के पड़ोसियों से लेके झगड़े होते हैं, और इतने ज्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं कि लोग परेशान होकर के आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो आत्महत्या कर लेते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेस। डिप्रेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें कि कहीं वो नौकरी कर रहे हैं, अचानक से नौकरी छूट गई, बहुत सारा लोन ले रखा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहन की शादी है, माँ बाप की बीमारी है, माँ बाप का अस्पताल में भर्ती होना है, पैरालिसिस है, इस तरह के कारण हैं जिनसे माँ बाप बहुत बच्चे के ऊपर बोझ बन जाते हैं, और बच्चा इतना घबरा जाता है कि वो किसी भी चीज से लड़ने के बजाय सोचता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। और ये डिप्रेशन इज अ डिजीज, इट हैज टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली, विच पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। और जबकि आप देखिए फॉरेन कंट्री में यदि डिप्रेशन से कोई जूझ रहा है तो वो इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करता है, लेकिन इंडिया में अभी ये रिवाज नहीं आया है। यदि आप किसी को बोलेंगे कि डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो बहुत बुरा मान जाता है, वो सोचता क्या मैं पागल हूं, मैं डॉक्टर क्यों चला जाऊं, कि ये अनीता बेंजामिन मुझे सजेस्ट कर रही हैं कि आप डॉक्टर क्या चले जाइए, तो मैं पागल थोड़ी हूँ। यहाँ उसको अदरवाइज लिया जाता है, लेकिन ये अदरवाइज लेने की चीज नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं सुशांत का केस चल रहा है लगातार, और इसके कई एंगल हैं, लेकिन अभी हम लोग उन एंगल पे नहीं जाते हैं जब तक कि वो प्रूव नहीं हो जाते हैं। अभी हम उसे ये मान के चलते हैं इट इज अ सिंपल सुसाइड।
और इसका कारण जो सामने आया है वो यही आया है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। अब डिप्रेशन के क्या कॉजेस थे ये नहीं मालूम। इतना सक्सेसफुल कलाकार, इतना टैलेंटेड लड़का, अपने फैमिली का एक यही ठीक समझा कि परेशानियों से ना लड़के मैं अपने आप को खत्म कर लूं, और उसने सुसाइड कर लिया, जबकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन हो सकता है कि कोई दवा की कमी हुई हो सकता है उसको और ज्यादा दवा की आवश्यकता हुई हो सकता है कि वो इसके बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी कोप अप नहीं कर पाया लाइफ में, और उसके बाद उसने अपने आप को खत्म कर लिया। एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा व्यक्ति, एक सुंदर हैंडसम एक्टर, टैलेंटेड व्यक्ति हमारे समाज से देखते देखते चला गया, और हम सब देखते रह गए, हम कुछ भी उसके लिए नहीं कर पाए। आजकल के जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे, 10th का रिजल्ट आउट हुआ कई सुसाइड करते हैं, 12th का रिजल्ट आउट हुआ सुसाइड करते हैं, लव अफेयर्स हो गए सुसाइड कर लिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी जनरेशन क्या कर रही है? हम क्यों ये अवेयरनेस पैदा नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों उनको रोक नहीं पा रहे हैं? हम क्यों उनको समझा नहीं पा रहे हैं? आखिर ये कमी कहाँ हो रही है? किस जनरेशन में हो रही है? हमारी जनरेशन में, या हमारे बाद आने वाली जनरेशन में, या हमसे प्रीवियस जनरेशन में? कहाँ क्या कमी है इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा। उसके अलावा यौन शोषण मीन्स सेक्सुअली किसी को अगर हैरेस किया गया है, और वो महिला अगर समाज को फेस नहीं कर पाती है, किसी को बता नहीं सकती कि उसके साथ क्या हुआ, अक्सर ऐसे केसेस में वो अपने आप को खत्म कर लेती है, अपने आप को मार लेती है, क्योंकि ये ऐसी शर्मनाक उसके जीवन के लिए घटना होती है कि वो सोचती है इसके बाद मैं कैसे फेस करूंगी। जबकि आप देखिए, निर्भया कांड ने हिंदुस्तान की इतिहास को बदल दिया। उसके भी माँ बाप उस चीज को छुपा सकते थे, या पूरा समाज उससे छुपा सकता था, लेकिन नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने इतना कोऑपरेट किया, लोग आकर के खड़े हो गए, और जस्टिस के लिए इतनी डिमांड उठी कि आखिर में उनको फांसी की सजा तक पहुंचा के ही लोगों ने चैन लिया। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन वो सिस्टम है, उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आखिर उसको, निर्भया को न्याय मिला। तो अब हम लोगों को इन बातों को छुपाने में विश्वास नहीं करना चाहिए, न्याय की लड़ाई को लड़ना चाहिए, न्याय के लिए हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। और इस तरह से मोलेस्टेशन भी होता है, परिवार के अंदर हो रहा है, सगे रिश्तेदार इस तरह से कर रहे हैं महिलाओं के साथ, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। अक्सर आता है कि सगे पिता तक ने ऐसा किया है, जो कि हम शायद सोच भी नहीं सकते कि समाज में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। फ्रेंड्स, दोस्तों, ऐसा हो रहा है। दिस इज हैपनिंग एवरी डे। रियल रिलेटिव्स आर मोलेस्टिंग एंड ट्राइंग टू रेप द गर्ल्स, और हमें अपने समाज की लड़कियों को बचाना है, अपने समाज के बच्चों को बचाना है। और लड़कियां ही नहीं, छोटे लड़के अनसेफ हैं, छोटे बच्चे अनसेफ हैं, उनके साथ मोलेस्टेशन हो रहा है। उसके बाद आता है नशा, ड्रग्स। Drug also is a very big challenge for nowadays, for this generation. लोग ड्रग्स खा करके सोचते हैं कि हम हर प्रॉब्लम से बच गए, अब हमें कुछ नहीं, हम सेफ हो गए, और शाम को हम सब दुख भूल गए, विच इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये गलत है, इस तरह से लोगों को नहीं सोचना चाहिए। ये नशा हमारे समाज को धीरे धीरे खा रहा है, और जो लोग इस तरह की ड्रग्स को बेचते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि बच्चे नशे के चुंगल से बाहर निकल के आ जाएं और नशे से दूर हो जाएं। इसके लिए आखिर हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों बैठे हैं? हम क्यों आज इस तरह के सेशंस करते हैं और बातों को खत्म कर देते हैं? हम सोचते हैं अब हमने बात कर ली, डिस्कस कर लिया, तो समाज की बुराइयां दूर हो गई। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको उसको दूर करना है, समाज से उसको हटाना है, अपने टैलेंटेड और अच्छे सारे बच्चों को बचाना है। उसके अलावा आखिरी पॉइंट आता है गंभीर बीमारी। आखिरी पॉइंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरे सेशन का आखिरी पॉइंट है गंभीर बीमारियां। कभी कभी कुछ लोग ऐसी गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाते हैं या उससे बीमार हो जाते हैं,
तो वो उसको बता नहीं सकते, समाज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी सेक्सुअल बीमारियां भी होती हैं जो लग गई, कहीं से किसी गलत रास्ते पे पड़ के जाने से लग गई, तो वो उनको बता नहीं सकते हैं, और धीरे धीरे वो शरीर में रिफ्लेक्ट अगर होने लगती हैं तो आदमी बहुत डर जाता है और उसको ये लगता है कि मुझको सुसाइड ही कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर समाज को पता लग गया कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। Right. इसके बाद हम देखेंगे इल्लीगल प्रेगनेंसी। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां, छोटी उम्र की लड़कियां गलत रास्ते पे चली गई, और लड़के भी, ऐसा नहीं है कि हम केवल लड़कियों के विषय में बात कर रहे हैं, लड़के भी इनोसेंट होते हैं, उनको भी ये नहीं पता कि हम और जिस लड़की से उसका कोई प्रेम का चक्कर है, हम दोनों कोई गलत काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आता, क्योंकि उनकी उम्र में वो अभी बहुत ही इमेच्योर है। और अगर वो इस तरह का कोई काम करते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो किसी भी प्रेगनेंसी को जो शादी के बगैर हुई है हम इलीगल ही मानेंगे, और इलीगल प्रेगनेंसी होने के कारण से आखिर सुसाइड ही करना पड़ता है। लड़की सुसाइड करती है क्योंकि उसको लगता है कि यदि समाज को पता चल गया, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने 37 इयर्स केंद्रीय विद्यालय में नौकरी की, और मैं 12th क्लास को पढ़ाती थी और मैं वाइस प्रिंसिपल लेवल तक पहुंची, लेकिन प्रिंसिपल मैंने कभी बनने की नहीं सोची, क्योंकि मेरे पास दूसरे सामाजिक कार्य बहुत अधिक थे। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो वो फिर आपको ट्रांसफर करते हैं। यू हैव टू, मे बी आई वुड हैव कम टू उड़ीसा, मे बी आई वुड हैव देयर विथ यू ऑल, तो मुझे अपना परिवार छोड़ना पड़ता, which I did not want to do। तो मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत रास्ते में पड़ रहे हैं। मेरे इस पूरे 37 इयर्स के जॉब में मैंने एटलीस्ट 2 या 3 सुसाइड देखे, और ये जरूर है एज अ टीचर हम लोगों को तो कुछ कारण पता भी चल गए, लेकिन बहुत से कारण फिर उजागर नहीं किए जाते हैं, बताए नहीं जाते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर चिल्ड्रन। लेकिन यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि देयर मस्ट बी अ रीजन, बच्चे छोटे और नादानी में करते हैं। उसके बाद सेक्सुअल डिजीजेस, कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो आजकल लेट सोने से, गलत लाइफस्टाइल से और कम उम्र में गलत रास्ते पे चले जाने से, और गलत रास्ते के साथ साथ ड्रग्स करने से, बहुत सी ऐसे काम करने से जो कि एज आपको परमिट नहीं कर रही है, ऐसे करने से जो बीमारियां हो जाती हैं, और उसके बाद वो गंदी बीमारियों में भी बदल जाती हैं जो आप रिवील नहीं कर सकते, जो आप समाज को बता नहीं सकते। उन बीमारियों के कारण से भी लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं। इसके अलावा देखिए, बुली इन कॉलेज, आजकल एक बुली का बड़ा रिवाज चल गया है। आप लोगों ने कई अभी मूवीज देखी होंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर आई, सुशांत की छिछोरे आई, बहुत अच्छी पिक्चर थी, मुझको भी उसकी थीम बहुत पसंद आई, उसमें भी दिखाया, रैगिंग दिखाई, और हर कॉलेजेस में 3 इडियट्स आई थी, उसमें भी बच्चों की शैतानियां और बुली और ये सब शैतानियां दिखाई गई। तो ये, इससे भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। कुछ साल पहले आप लोगों को याद होगा, अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स बैक, कि एक बहुत यंग लड़का था जो नया नया इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, और ये शायद पहला सुसाइड था जिसमें ये सामने आया था कि एक लड़का जो है उसने इसके वजह से, बुली के वजह से सुसाइड कर लिया, और पूरा कॉलेज हिल गया था और पूरा समाज हिल गया था कि इतना छोटा लड़का जो मात्र 12th क्लास पास करके और इंजीनियरिंग कॉलेज में गया और उसने बुली के घबराहट से और डर से सुसाइड किया। उसके बाद है होमिसाइड। ये होमिसाइड का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति मीन्स टेंडेंसी, ये टेंडेंसी होती है कि वो पहले तो मार देते हैं दूसरे को और फिर अपने को मार लेते हैं। Sometimes you know it happens कि दे हस्बैंड वाइफ के अंदर they kill the wife and they shoot themselves also। एक कहानी हमने पढ़ी थी और सुनी भी थी अपने परिवार में, और उस कहानी में था कि एक माता पिता थे और उन दोनों में बहुत लड़ाई हुई, और रात में पति ने अपनी वाइफ को शूट कर दिया, और शूट करने के बाद उसने
अपने आप को भी मार लिया। और एक छोटी सी बच्ची थी, वो छुप करके पर्दे के पीछे से ये सब कुछ देख रही थी। और जब मॉर्निंग में अखबार वाला आया, दूध वाला आया और देखा कि वो माँ बाप नहीं उठ रहे, घंटी बजाई, ये फॉरेन का केस है, तो उसके बाद पुलिस इमीडिएट आ जाती है। वहां पर आए तो जब खोला गया तो इधर उधर ढूंढा गया कि और कोई नहीं है, तो देखा एक छोटी सी 5 साल की बच्ची बैठ करके रो रही है। तो जब उस बच्ची को लिया गया तो उसको इमीडिएट किसी एनजीओ को सौंप दिया गया कि जब तक ये और कोई नहीं था उस परिवार में, they were only mother, husband, wife and the daughter. So probably the girl was only 5 or 6 years old, so she was immediately handed over to an NGO. तो उस बच्ची इतने शॉक में आ गई कि उसकी आवाज चली गई। She was not able to speak anything, she was not able to express anything. So the police and the cops were instructed not to ask anything to her because she was in the state of shock. और काफी दिन बीत गए तो एक दिन टीचर जो थी वो क्लास में फोटो दिखा रही थी सारे धर्मों के भगवानों की। तो जब उसने जीसस क्राइस्ट की एक फोटो ऐसे करके दिखाई कि देखो बच्चे, ये मतलब मुस्लिम्स के धर्म गुरु हैं, ये सिखों के हैं, ये उसके हैं, ये क्रिश्चियन के हैं, तो जैसे ही उन्होंने दिखाया वो बच्ची चीख पड़ी कि ये अंकल उस दिन पूरी रात मेरे साथ थे। तो मीन्स ये तो देखिए एक कहानी है जिसने मुझको बहुत टच किया था। भगवान भगवान है चाहे वो किसी फोटो के थ्रू दिखे हों। मतलब उस बच्चे का कहना ये था कि उस रात जब ऐसा उसके घर में हुआ, पूरी रात 2 लाशें पड़ी रहीं, तो उस बच्चे के साथ भगवान वहां मौजूद थे और उस बच्ची को उन्होंने गोद में ले रखा था। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने बच्चों को क्या शिक्षा दी, बच्चों ने आखिर क्या सीखा। उस बच्ची ने सारी जिंदगी के लिए देखिए उस बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया और पति ने अपनी पत्नी को लड़ाई झगड़े के बीच में मार दिया। लेकिन ऐसे लोगों के पास समय नहीं होता है कि वो पछताए और अपने आप को सुधार सके, अपने आप को ठीक कर सके, क्योंकि वो उस मौके को खो चुके होते हैं। फिर आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इसलिए बहुत आजकल एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में उभर के आ रही हैं कि आप लगातार सुन रहे हैं कि किसान सुसाइड कर रहे हैं। 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख का मकान खरीदा, बहुत खुशी से मकान बनाते हैं, गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, लेकिन वो कभी-कभी उस लोन को रिपे नहीं कर पाते हैं। और जब वो रिपे नहीं कर पाते, सडन नौकरी चली गई या पति की किसी कारणवश डेथ हो गई और पत्नी उसको नहीं कर पा रही है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है सिवाय इसके कि वो अपने आप को खत्म कर ले, सुसाइड कर ले। आप देखिए बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस दर्द को महसूस करिए, उस तकलीफ को समझिए, ताकि आज सिर्फ हम लोग बात करके ना चुप होके बैठ जाएं, लेकिन हम इसको एक ऐसी प्रॉब्लम समझें जो समाज की ना होके आज हमारी अपनी बन चुकी है। हमारे बच्चे हमारे आंखों के सामने सुसाइड कर रहे हैं, तो हमें एज सीनियर्स उनकी सहायता करनी है, उनकी मदद करनी है। उसके बाद आता है मेंटल प्रेशर। आजकल बहुत मेंटल प्रेशर हो गया है। सबसे ज्यादा तो मेंटल प्रेशर जॉब का हो गया है। हम लोगों के जमाने में 1:30 बजे 2 बजे घर आ गए, खाना खाया, आराम से सो गए, टीवी देख रहे हैं, मौज कर रहे हैं और पिक्चर जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं। आज सुनिए कॉर्पोरेट में 9 बजे से पहले बच्चे घर नहीं आ रहे हैं, एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज। दे गो इन द मॉर्निंग probably at 9 o'clock and they come back at 9 o'clock in the night. एंड वो तो गर्ल्स आ जा रही हैं, लेकिन जेंट्स को तो मैंने देखा है कि 12-12 बजे रात में आ रहे हैं। दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर वाइव्स, दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर लिटिल किड्स। उन्हें वो क्या ग्रूमिंग देंगे, उनको क्या बताएंगे। बहुत से लोग बच्चे ऐसे हैं जो पहचानते नहीं कि ये मेरे पापा हैं, क्योंकि जब वो सो के उठता है तो पापा चले गए और जब वो सो जाता है तो पापा घर में आ रहे हैं। कितनी दुख की बात है दोस्तों, कितनी दुख की बात है कि बच्चा अपने बाप को आज नहीं पहचानता है, सिर्फ माँ के साथ रहता है। अभी जब हम अपनी भाभी जी के यहाँ गए, उनके
उनके डेथ में, तो उनकी बहू का छोटा सा 1.5 साल का बच्चा है, तो वो उसने पूरे मीन्स 4 दिन में हम लोग ने जो देखा, उसने अपनी माँ को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। मतलब मैं ये महसूस कर रही थी कि वो बहुत बेचारी परेशान हो जा रही है, बिकॉज बहू है, सब उससे मांग रहे हैं कैंडल कहाँ है, अगरबत्ती कहाँ है, दौड़ रही है चारों तरफ, और बच्चा उसको बहुत तंग कर रहा था। तो ये जो उसको छुट्टी मिली, तो she gave so much of love to the child कि now the child does not want to leave the mother for a second। और घर में इतने लोग, इतनी भीड़, तो वो बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ रहा था। अब सडन अगर कुछ ऐसा हो किसी भी परिवार में कि बच्चे को माँ ना दिखे, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि उस बच्चे का पर गुजरेगी। तो ये तो थे दोस्तों, मेरे साथियों, ये तो थे कॉजेस। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। हाउ विल देखा है, और बाद में जीवन में सुनने में आया कि उसने सुसाइड किया। वो हमेशा उनको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको बड़ी खुशी मिलती है कि वो उसको इमीडिएटली समझना होगा। स्लीपिंग पिल्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार नींद की दवाएं खाते हैं और उसके डोजेस बढ़ते जाते हैं साथियों, और एक दिन ऐसा आता है कि आप because the limit is exhausted now। एक सच्ची घटना हम आपको बताना चाहते हैं कि एक परिवार था, उसमें माता पिता की दोनों की स्लीपिंग पिल्स लेने की आदत थी, और वो स्लीपिंग पिल्स खा करके सो जाते थे, और हमें इन चीजों से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। लोनलीनेस, अब जैसे सुशांत के केस में बाद में यही सुनने में आया कि वो बहुत लोनली रहने लगा था, उसके सारे दोस्त कम हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, और आजकल लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, एक दूसरों को जाके हालचाल पूछने का समय नहीं है। अभी मैंने पढ़ा था कि बहुत आवाज उठी थी तेजी से जब सुशांत का केस हुआ था सोशल मीडिया पे, और ज्यादातर हमारे यंगस्टर्स कह रहे थे कि भाई हम लोग एक दूसरे को समय देंगे, मगर आखिर कितने दिन उनका जोश चलेगा, ये देखने की आवश्यकता है, और ईश्वर करे ये जोश बना रहे। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है साथियों कि आपका कभी कुछ मूड हो जाता है, कभी कुछ मूड हो जाता है, बड़ी जल्दी जल्दी आप चेंज हो जाते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी में बड़े अजीब से चेंजेस आ जाते हैं। कभी आप हंसने लगते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हंसने लगते हैं, जहाँ नहीं हंसना आप वहां भी हंस रहे हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेड, लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। तो ये एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, और इसका इलाज बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भी आपके लिए कभी ना कभी बहुत खतरे का कारण बन जाएगा। वायलेंस की बात, ज्यादातर जो लोग ऐसा करते हैं वो वायलेंस की बातें बहुत ज्यादा करते हैं, बंदूक की, रिवॉल्वर की, गन की, मैंने ऐसे किया, मैंने यूं मारा, और इस तरह की बातें करते हैं, या उसने मारा मैं उसको मार दूंगा, इस तरह की बातें बहुत से लोग करते पाए जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो इस शॉर्ट टेम्पर्ड के वजह से या अपनी किसी इस तरह की बातचीत के वजह से उन्होंने खुद सुसाइड किया, या दूसरों को परेशान करने के बाद खुद को खत्म कर लिया। और ईटिंग डिसऑर्डर भी इसी में आता है,
खाते चले जा रहे हैं मतलब आपके अंदर एक कंट्रोल होना चाहिए कि आपको लिमिट के अंदर रहना है। तो वो आपको इतना अधिक मोटा कर देता है, मे बी पता नहीं कितने केजीज का कर देता है, और एक कुंतल से भी जब आप ज्यादा हो जाते हैं आपके लिए बोझ हो जाता है कि आप बेड से नहीं हिल सकते, इसमें भी लोगों को फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन इन लाइफ, अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, गिविंग आगे पर्सनल बिलोंगिंग्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से अपनी चीजें बांटना शुरू कर देते हैं, ये तुम ले लेना, ये तुम ले लेना, मैं तुमको ये दे दूंगा जब मैं नहीं रहूंगा। दे टॉक लाइक दिस। जैसे आपने सुना कि मैंने शुरू में एक एक्टर की कही हुई बात, टीवी एक्टर समीर की कही बात कही थी, मैंने अपनी चिता सजाई और मैं उस पर सो गया। ये कविता उसने शेयर की थी। आप देखिए कितने दुख की बात है कि चिता दूसरे लोग सजाते हैं, शमशान घाट पे लोग होते हैं वो रखते हैं और सजाते हैं, और पंडित जो बोलते हैं वहां पर कुछ भी श्लोक वगैरह बोलते हैं, तो कोई किसी की चिता नहीं सजाता है। तो वो कह रहा है मैंने स्वयं सजाई, उसका मतलब है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन अपने को खत्म करने की खुद की, और मैं इस दुनिया से चला गया। स्ट्रेस और कांस्टेंट प्रॉब्लम, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत मेजर कारण है, और स्ट्रेस किसी टाइप का भी हो सकता है। आपके फैमिली प्रॉब्लम्स का हो सकता है, आपके पति पत्नी की लड़ाइयों का हो सकता है, दहेज का हो सकता है। अक्सर ऐसा हुआ है कि पिता के ऊपर बहुत प्रेशर है कि लड़की को थोड़ा सा लड़की में प्रॉब्लम है तो मुझे दहेज देना है। ये स्ट्रेस भी लोगों को मजबूर करता है कि वो अपने आप को खत्म कर लें। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इन लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं एज अ सोसाइटी। एज अ सोसाइटी ही हम कह सकते हैं, या एज फ्रेंड्स, एज रिलेटिव, as common people, as Facebook friends, as Insta friends, as anybody, as neighbors also, sharing problems with friends. आपको केवल अपने आप के लिए कुछ नहीं करना और कहना है, आपको दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनना है, शेयर करना है, अपनी बतानी और उनके साथ समय बिताना है। जैसे दोस्तों, जब हम कल दिल्ली पहुंचे तो एक फैमिली है, मेरे चर्च के मेंबर्स हैं, उन लोग इमीडिएटली उन लोग शाम को पूरा फैमिली मेरे घर में मेरी भाभी के विषय में पूछने के लिए आया, और काफी दूर रहते हैं, और मुझको बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट दे हैव स्पेयर्ड टाइम टू सिट विद मी। और उसके बाद हम लोग 1 घंटा बैठे रहे, जिससे मूड भी थोड़ा रिफ्रेश हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें करते रहे, और धीरे धीरे हम लोगों का बहुत, जैसे आप कह सकते हैं, मन हल्का हो गया और हम लोग बातें करते रहे। इसके अलावा स्पिरिचुअलिज्म, हम लोगों को जो आजकल देखिए टाइम नहीं है भगवान जी के लिए, टाइम नहीं है उनके पास धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का, ना वो रामायण ना महाभारत कुछ उन्हें ना याद है, ना वो पढ़ना चाहते हैं, ना बाइबल, कुछ नहीं, हर चीज से दूर भाग रही है। आज की जनरेशन नास्तिक हो जा रही है। तो हमें इनको थोड़ा भगवान के नजदीक भी लाने का प्रयास करना पड़ेगा। जब ये भगवान के नजदीक आएंगे, स्पिरिचुअलिज्म इनको वो करेगा कि भाई इन्फ्लुएंस करेगा, इनको समझ में आएगा कि ईश्वर ने तुम्हें ये जीवन दिया है, कितना कीमती जीवन है, और तुम्हें उस जीवन को कहना चाहिए कि जीना है, अपनी इस लाइफ से दूसरों के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ करना है, ना कि मर के आसमान में चले गए। वहां जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये तो किसी को भी नहीं मालूम, हम लोग भी नहीं जानते। तो एक आसान तरीका क्यों हम अपनाएं, एक आसान तरीका क्यों हम खोजें जिससे हम जा करके मर के आसमान में आराम से चले गए। प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं मिलता है तो हमने जो अभी आपसे पहले डिस्कस किया, अगर आप में किसी में ये टेंडेंसी देखते हैं, वो बार बार लोनलीनेस है, बार बार मरने की बात करता है, सामान बांटने की बात करता है, तो आप उसको थोड़ा मेडिकल हेल्प समझाइए, देने की कोशिश करिए, उसको ले करके जाइए डॉक्टर के यहाँ, या उसकी सहायता करिए, उससे डिस्कशंस करिए। हॉटलाइन नंबर्स,
हमारे पास बहुत से ऐसे हॉटलाइन नंबर्स हैं जिसमें मुझे एक याद है 102, और उसको आप लोग इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि बहुत से लोग प्रयास करते हैं लेकिन वो प्रयास सक्सेसफुल नहीं होता है, वो बच भी जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुशांत के केस में भी सुना होगा कि कुछ लोगों ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि उसकी उंगलियां हिल रही थी जिस समय पुलिस पहुंची है। तो यदि ऐसा है तो इमीडिएट उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि टाइमली उस व्यक्ति को सहायता मिले और उसका जीवन बचाया जा सके। और डॉक्टर्स के कंसल्टेंसी में रहना चाहिए, डॉक्टर्स से बातचीत करते रहना चाहिए और उस व्यक्ति को सहायता करनी चाहिए। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे, नो हेल्प विदाउट डॉक्टर। आप खुद डॉक्टर मत बन जाइए, जो कि हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है। अरे सर्दी जुकाम हो रहा है, कुछ लेते हैं क्यों नहीं, ये एक बहुत कॉमन सी बात है। लोग एक दूसरे से कहते हैं अरे आप वो ले लीजिए, इलेग्रा ले लीजिए, सिट्राजिन ले लीजिए। अब क्या पता उसमें सल्फर हो, उस व्यक्ति को उसकी एलर्जी हो, आपने तो उसको जीते जी मार दिया। से मतलब उसके लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, उसको इमीडिएट डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है। तो समय को देखते हुए बस कुछ 1-2 पॉइंट्स और रह गए हैं। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि ये टेम्परेरी फेज है। अगर हम लोग टाइमली सहायता करें और उस व्यक्ति को रोकें ऐसा करने से, तो हम उस व्यक्ति को जरूर बचा सकते हैं जो ऐसा कर रहा है। और कोऑपरेट करना चाहिए फैमिली के साथ, पति पत्नी के साथ। और अंत में हम आपको एक छोटा सा शेर सुनाना चाहते हैं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू आमोद। Brilliant. Okay. थैंक यू। Okay, thanks a lot. So अभी समय हमारे पार्टिसिपेंट जो लोग सुन रहे थे मैडम को, so अभी क्वेश्चन आंसर सेशन है 15 मिनट आप लोगों के लिए। आप any kind of questions if you have, you can ask to ma'am, as well as if you want to know anything about her organization, what they do and all, you can ask everything. Now this time is for all the participants to interact with our guest speaker. Related to this topic also you can ask, and any other question also you can ask. गुड इवनिंग मैम, मैं चांद मंडल पारादीप से बोल रहा हूँ, उड़ीसा का। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरा ऐसा है कि जब मैं थोड़ा ऊंचे जगह पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तो मैं यहाँ पे जंप कर लेता हूँ, तो या मैं आई विल डाई, और मतलब ऐसा चीजें सब आता है मेरा दिमाग में। तो हर वक्त और डर जैसा तो हर वक्त लगता है, कुछ नहीं होता है फिर भी जैसे मतलब कुछ अजीब सा मतलब फियरनेस, ऐसा मतलब स्कैरीनेस आता है दिमाग में। नहीं, हम आपकी बात समझ गए। देखिए, ऊंचाई से डर लगना भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो शुरू में हमने बताया था कि साइकोलॉजिकल। तो इसके लिए कभी भी आप चाहें तो किसी ऐसे ही दोस्ती में किसी डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लीजिए कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। क्योंकि देखिए, हाइट से डर तो मुझे भी लगता है। जैसे बहुत ऊंची बिल्डिंग, 14 माले की बिल्डिंग और 20 माले की आजकल जो बन रही, तो वहां से नीचे जाके तो बहुत डर तो लगता है। लेकिन पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि आप बहुत नजदीक किनारे ना जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप ऊंची बिल्डिंग के बहुत किनारे जाएंगे तो आप इतने इनसिक्योर्ड हो जाएंगे कि आप घबरा के ये नहीं समझ पाएंगे हम किस तरफ झुक रहे हैं, और प्रोबेबली कोई भी हादसा हो सकता है। तो एक तो आप दूर हट के खड़े होइए, डोंट गो क्लोज टू हाइट्स। और कभी मौका लगे तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से इस बात को कर लीजिए कि मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। थैंक यू।
Hello. जी. My name is Charitra Bhanjan Sahu. By profession, I am a social worker. As well as I am जी. also a colleague of Amut Manai. So, I would like to know, actually many things are happening. So how this can be avoided that particular time any person is committing suicide means how it can be avoided? How can it be avoided actually? यस गुड क्वेश्चन. देखिए इस तरह से अवॉइड हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी पहले डाउट हो गया है या आपको शक है कि ये जो है आजकल डिप्रेशन में चल रहा है और ये सुसाइड कर सकता है, तो आप इमीडिएटली उसके रिलेटिव्स को, उस अगर लड़का है लड़की है तो उसके पेरेंट्स को, उसके नेबर्स को आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए और उसके साथ बैठिए, उससे बात करिए और उसको कोशिश करिए काउंसलिंग करने की, बिकॉज काउंसलिंग इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस. और उसको उसके बैड गुड पॉइंट्स बताइए कि अगर तुम ऐसा करोगे बेटा तो लाइफ में कुछ नहीं है, you will die and you will go to heaven and you will leave this beautiful world in seconds. तो इस सुंदर दुनिया में जियो और जी के अच्छा काम करो. जो हमने आपको एंड में शुभ सुनाया, ऐसा काम करो कि तुम्हें जमाना याद करे, तो उसको समझाइए कि वो ऐसा ना करे. आपकी काउंसलिंग ही उसको फिर रोक सकती है. जी, थैंक यू. Thank you, ma'am. Is there anyone और कोई पूछना चाहता है? असिस्टेंट डायरेक्टर ओडिशा फॉलोअप के लाइन में है. मैडम आप कुछ पूछना चाहेंगे? Yes. Yes. First we may Yeah. This is Hiranmoy and from YWCA Balasore. See, you say that to go to doctors for different diseases. Suppose someone is depressed, someone is sick, we need to go to doctors. See, nowadays we are in this COVID pandemic time. It has been very difficult to go to doctors. Even online also they don't like to talk to the patients properly. So many of us, we try to go to a YouTube channel and then we find out that the diseases and we try our best to learn from there. In this case, what is your suggestion? Yes. My suggestion is please do not open YouTube or anything for the solution या for the मतलब उसके अलावा हमने देखिए अभी आपसे बोला प्रॉपर डॉक्टर की बहुत जरूरत होती है और लोग जाना इसलिए नहीं मानते. पूरे समाज में हर चीज को छुपाने की आदत है. अब मान लीजिए कि कुछ किसी को हो जाता है और तो हम लोग ये सोचते हैं कि दूसरों को पता लग जाएगा कि हमको ये डिसऑर्डर है तो हम डॉक्टर के आना जाए. लेकिन छुपाना क्यों है? हमने अभी आपको बताया निर्भया केस में देखिए जस्टिस पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया जस्टिस के लिए, और अगर उसके पेरेंट्स छुपाते तो नहीं मिलती. तो आप ऐसे व्यक्ति की काउंसलिंग करिए, उसको समझाइए कि कोई बात नहीं, पता चले तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, तो तुम चलो, आई विल टेक यू. समय दीजिए, समय देके उसको लेके जाइए, डॉक्टर से मिलिए एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. And for such people, आप एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना भी कर सकते हैं कि उसकी समस्या दूर हो और उसकी समस्या को कम किया जाए. Yes. Thank you so much. It was encouraging. Thank you. Good evening, ma'am. I have a question. My name is Yeshiko Dandia. Yes. I was very much looking forward for your session because it is really disheartened when we hear about anyone committing or anyone attempting also. And I was really disheartened when I heard about Sushant also. I just wanted to ask, the person who commits or a person who tries, is it for at once they do or they repeatedly they try for it? Sorry, please, can you repeat?
Yeah, because taking a वॉइस life थोड़ा is ब्रेक not हो that रहा है, easy. वॉइस ब्रेक हो रहा है आमोद, वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है. कैन somebody repeat this question? Amod, can you Yes. repeat? Yeah. Yeah, please. Yeah. She's asking those who want to commit suicide, do they try several times for this, or at once they try for this? हाँ, yes. देखिए, some of the in some of the cases people try many times and they don't tell anyone. और अक्सर ऐसा होता है कि सपोज उन्होंने पिल्स ट्राई की, नहीं कुछ हुआ, सो दे हाइड इट, दे डोंट टेल एनीबॉडी. सेकंड टाइम उन्होंने कुछ जहर वहर खा लिया, चूहे का जहर, कुछ नहीं हुआ, एंड थर्ड टाइम फाइनली दे हैंग देमसेल्फ, बिकॉज हैंग करने से जल्दी से गला घुट जाता है और सफोकेट होके मर भी जाते हैं. तो यस, सम पीपल अटेम्प्ट मेनी टाइम्स, सो यू हैव टू बी केयरफुल. If you see these symptoms in somebody, और आप उसको help करिए, counseling करिए, try to take him to a good doctor if somebody is having these मतलब symptoms. जी. Okay, ma'am, there is a question in chat box asked by Reverend Sushant Naik from Kandhamal. He has asked, I am afraid the suicide rate is increasing. How to bring down these causes? Many youths are committing suicide. Many youths are committing suicide because of their joblessness. Is there anything to be done by the government? What is his name? The person's name? Reverend Chat box में. Reverend Sushant Naik from Kandhamal district. अच्छा, Reverend Sushant, आप मेरे साथ आइए ना. We will stand for it. We all of us, those who are here today, we all will stand. We will, write letters to the government. We will ask them what are they doing for it. क्योंकि देखिए, government हर चीज के लिए करती है, लेकिन it is a personal issue. गवर्नमेंट किसी के घर के अंदर जाके ये नहीं पता कर सकता कि कौन आज सुसाइड कर रहा है. इन दैट केस वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दैट. We have to stand, we have to make a project, we have to think some remedies for these things, and we can approach government कि अब हमारी इसमें हमारी help करिए, so that we can stop the cases of suicide. तो गवर्नमेंट हमें कोऑपरेट करेगी, but you have to come with a plan, with a roadmap to contact the government. Actually, madam. Hello. Actually, Hello, madam. May I ask you one thing? Yes. Hello. Actually, the madam, now we see the much more of this joblessness is increasing. The government is not taking so much of thing, which is a very sad part of that. So since you are there with the government, we hope that you will initiate this thing so that government will take so many steps to bring down this joblessness. This is a request to you. Reverend Sushant, this is not the, you can say, first time, and I will come again. I will talk to you all about it, and we will think of something definitely. But I want to tell you that I am already working on this issue for the last 2-3 years. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिवेंशन के लिए बहुत काम कर रही है. देखिए, 1 घंटा कुछ भी नहीं होता है, पर उस समय हमें लग रहा था 1 घंटा बहुत है, बिकॉज समय पता नहीं कैसे, लेकिन अब तो पता भी नहीं चला और कैसे 1 घंटा पूरा निकल गया. बट मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल टॉक टू ईच अदर अगेन, तो हम आपको फिर बता सकेंगे कि व्हाट माय ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग फॉर इट. सो इन मेनी केसेस we have the documents that we have stopped people from committing suicide. बहुतों को हम लोगों ने रोका है और बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने सही रास्ते पे काउंसलिंग के द्वारा लाने का प्रयास किया है. जी. Okay, thank you then.
और एक चीज और हम सारे गेस्ट जो हमारे इस समय हैं उनसे कहना चाहेंगे कि हम पर्सनली भी बहुत जल्दी जब लॉकडाउन पूरी तरह से खुलेगा तो उड़ीसा आएंगे, बिकॉज आई हैव नेवर कम टू उड़ीसा इन माय लाइफ. I will definitely come there and meet you all. This is my most cherished desire, which I want to, fulfill it. और हम जरूर आके आप लोगों से मिलेंगे. And You are most welcome. या तो अपने टॉपिक तैयार रखिएगा, अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा, क्योंकि आमोद नायक इज रियली एन अमेजिंग पर्सन जिन्होंने इतना सोचा हमारे और आप सबके लिए, हम सबको कनेक्ट किया है. एंड आई एम रियली सो हैप्पी कि लग नहीं रहा है कि हम लोग इतने डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर बैठे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे हम सब आमने सामने बैठे हैं. आमोद, once again thank you so much for this wonderful session and all the efforts which you have taken to organize this, and I would congratulate your organization also. और हम ये चाहते हैं कि आपकी जो organization है वो बढ़े, और in future all of us will work together. तो अब विदा ले आप सबसे. Okay, ma'am. Sorry, one more question. Someone has. Yeah, please. Yes, Joseph Ravi ji, please ask it. Yeah. Good evening, ma'am. Good evening. He is my vice president. Okay. He is my national vice president of my organization. Yes, I am fine. Thank you so much. Nice meeting you. Ravi, Nice meeting you. Yeah. Just all good evening, everyone. Just I got a small suggestion actually. As we have the Catholic Christians, so instead of going to the counseling and everything, why can't we just little bit divert according to the spiritual thing actually? Because what are the, we are just thinking about the drugs and everything is a negative thoughts actually. So when there is no God, obviously the negative thoughts will appear there. So when we give the God actually, when the God presence is there, obviously we will get the negative positive things. So everything will be voice is breaking. Voice is breaking. I can't hear. Yeah. You can't hear now. आप बताइए. You tell me the question. Yeah, ma'am. This is the thing actually. It's not a question actually. Just actually, why can't you just be through our rhythm actually? So we can just educate the spiritual thing also, so that the people will be get the positive things and they will be in the positive mind, and this negative thing will be disappear. So if we will try with the spiritual things, go to man actually. Very good suggestion. So it will be a moral for us in the future actually. आप बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं हुआ हमें तो, लेकिन if it was a suggestion, Amod, can you repeat it please? No, I couldn't get him, ma'am. I couldn't get him. I couldn't. Shall I try once more, ma'am? हाँ, please try once again. Yeah. Kindly text in chat. Message कर दीजिए. Yeah. I'll type it. So my suggestion is actually, as we are the Christians, so why can't you just mingle with this spiritual thing also actually? Because our God is an Almighty, is a Savior for us actually. So hence, if we just go into the spiritual thing and what are the negative things are there, remove it through the God's will actually. And while giving the counseling also, if we give in a spiritual counseling also, I think this will be get righted very shortly now. Okay, I have understood now. Yes. Mr. Amod, I think he is saying that through spiritualism, we can, tell people or लोगों से हम लोग कह सकते हैं, और उसके थ्रू भी churches से के थ्रू भी हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना जोसेफ? Yes. मतलब he wants to say कि through organizations, through institutions like churches and through school colleges, matlab through all these platforms, we can very good, very valid point, Ravi. Through all these things, we can educate people. So through this, I think we can avoid. And Joseph Ravi is from Karnataka.
and he's my national vice president. And I have seen a chat in the box. Pastor Satendra Shirvastav, he is from Uttar Pradesh. He's president of Uttar Pradesh. He's written join RIM. He's trying to, you know. So if I would suggest people to join Amod's organization, I'll be after him only. So, ठीक है. Anything else? Yeah, one more session we will plan, madam, because this is the request from our participants. So definitely we can organize another webinar as per your convenient time. So no issue regarding that. And on the behalf of our Rashtriya Isai Mahasangh family, we would like to congratulate ma'am for the wonderful and a remarkable session, as well as the organizer, Brother Amod, for this wonderful thing. I have a small suggestion that this session should be repeated in different stages also, because I have seen the session from the beginning, and personally saying it's a blessing from the ma'am, and it always be encouraging and a blessing we get from her. She was really a very impressible personality, and always encourage our team. So would like to congratulate once again, ma'am, for the beautiful and remarkable session. Thank you so much. This is Johnson from Meerut. He's also from my organization. Okay. So he's also, Okay. So it's a wonderful time to meet with all your organization staffs and all leaders, those who are associated with you. And any other queries, any other concern questions? We have 1 minute. अगर कोई लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं. मैम इसके बाद बिजी हो जाएंगे, मुझे पता है. और कोई लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप. लास्ट. Nice. I can't question my ma'am actually. Yeah. Just I can give suggestions. That's it. I think this can be taken up by our youth team, ma'am. Yeah. You can just cover it through our youth team. They will be capable for this to take care about that. You can help them actually. Okay. I had seen Virendra Kumar was also there. I had seen his name somewhere. Where is he hidden? Yeah, Virendra sir is good evening. Finally, good evening, ma'am. Where were you? I was waiting for a question. I have been all there for the last 1 month also. It's a well strategized plan to introduce to Orissa and Orissa follow-up and even Rashtriya Isai Mahasangh Orissa chapter. I'm happy that you came the way we wanted it to. So it's excellent presentation. I'm happy for all. I'll be staying connected. We are working towards a better growth of RIM in Orissa. Surely. Okay, thank you so much. Congrats. Thank you, Amod. Okay. Yeah, thank you. Hopefully everything is fine. Thanks a lot. Okay. Okay, I will take leave now, Amod, because you know, somebody is calling me continuously. They are also wanting to visit me. Yes. Okay, and कोई कमी कोई गलती हुई हो तो आप लोग सब मेरा प्रॉब्लम को सोचते हुए just excuse me for the zeal and enthusiasm which you must have missed in my speech, क्योंकि मेरे लोग जानते हैं मैम की speech कितनी fiery होती है. But today I was slightly upset about the whole situation which I had undergone last 4-5 days. ठीक है, फिर good luck to everybody, love to everybody, and I will come again. And if Amod will invite me for another topic, sure, and I will be there personally also in Odisha. Thank you so much. Okay. So let me conclude this with a small vote of thanks. Once again, I would like to thank ma'am for spending her valuable time with us and for her inspiring session, which has energized everyone. And even I would like to thank all the participants जो लोग ने हमारे साथ वेबिनार को सुन रहे हैं आज तक और एनकरेज कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं हमारे साथ.
इसलिए आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैम को भी. So thanks a lot, all of you. Kindly join with us in our next webinar. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, bye. Bye.